نحمده ونصلي على رسول كريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتن المحيا والممات ومن شر فتن المسيح الدجال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وفهما وتفقا والحقنا بالصالحين یا معلم ابراہیم علمنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں مسیح دجال پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسیح دجال کے فتنے سے بچنے کا راستہ کیا ہے، اور مسیح دجال کیسا ہوگا، کون ہوگا، کس وقت میں آئے گا اور کہاں خروج کرے گا۔ مسیح دجال قرب قیامت میں آئے گا، فتنوں کے دور میں آئے گا۔ اس وقت فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ اس وقت قتل و غارت، خون ریزیاں زیادہ ہوں گی، مسلمان مصیبت میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے۔ مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، عیسیٰ ابن مریم بھی، اس کا نزول بھی ہوا ہوگا۔ تو اسی وقت خبر آئے گی کہ دجال اصفہان کے شہر سے خروج کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق احادیث میں پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہیں ڈرایا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے بال گنگرالے ہوں گے، اس کے چہرے پر کافر لکھا ہوگا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، وہ کانا، ایک آنکھ اس کی کانا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دجال کے خروج کی خبر دی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں جو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ اے صحابو، میرے یارو، کیا آپ کو پتہ ہے، کیا آپ کو خبر ہے کہ میں نے کیوں آپ کو اس وقت جمع کیا؟ تو صحابہ نے بیک زبان کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمیمی داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو حال ہی میں اسلام قبول کر چکا ہے۔ یہ پہلے نصرانی تھا، پہلے عیسائی تھا، تو یہ سمندری سفر کے لیے نکلا اور اس نے اس سمندری سفر میں دجال کو دیکھا، اور دجال نے اس سے 4 سوال کیے جو دجال کے بارے میں آپ سے کہتا تھا، میں دجال کے بارے میں آپ کو بتاتا تھا، اس کا عینی گواہ آئی وٹنس آج تمیمی داری ہے، جس کو دجال نے 4 سوال کیے، جس نے دجال کو دیکھا۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ تمیمی داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا دجال نے کیا کہا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندری سفر کر رہے تھے، بحری سفر کر رہے تھے کشتی میں، تو ایک طغیانی آئی جس سے ان کی کشتی بے قابو ہو گئی اور ایک جزیرے پر رک گئی۔ مسلسل 30 دن تک یہ کشتی چلتی رہی اور یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے پر پہنچ گئے۔ جب وہ جزیرے پر اترے تو اس نے ایک شخص کو دیکھا جس کا نام جساسہ تھا۔ یہ ایک جانور ہے جس کو دابۃ الارض کہتے ہیں۔ احادیث میں اس کا نام دابۃ الارض جو قرب قیامت میں نکلے گا، دابۃ الارض کہا گیا۔ اس کے اتنے بال تھے کہ سامنے بھی بال، پیچھے بھی بال، کہ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا چہرہ اور پشت کون سا ہے۔ مگر وہ انسانوں کی بولی، انسانوں کی زبان بولتا تھا۔ اس جساسہ نے تمیم داری جو 30 افراد پر مشتمل تھا یہ قافلہ، ان سے بات کی اور کہا اے شخص،
आप कहाँ से आए हो? इस आगे एक किला है, आगे एक चर्च है, आगे एक गिरजा है। इस गिरजा में एक आदमी है जो आपसे मुलाकात करना चाहता है, आप उधर जाए। और तमीमी दारी कहते हैं कि हम डर गए, शायद कोई जिन है ये। फिर जब हम आगे बढ़े तो उस गिरजा में हम दाखिल हुए तो हमने एक शख्स को वहाँ देखा, उसके हाथ बंधे हुए थे, जंजीरों से वो जकड़ा हुआ था। तो उसने कहा, आप कहाँ से आए हो? आप कौन लोग हो? आप कौन लोग हैं? हमने कहा, हम अरब के लोग हैं, अरब से आए, हमारी कश्ती रास्ता भूल गई, हम रास्ता भूल गए, समंदरी रास्ता तो गियानी की वजह से, और यहाँ जजीरे पर ठहर गए तो आपसे मुलाकात हुई। दज्जाल ने उनसे कहा, अच्छा आप अरब से आए हो, मैं आपको चंद सवाल करता हूँ। इनमें से पहला सवाल जो दज्जाल ने हज़रत तमीमी दारी से किया वो यही था कि नकली बैसान के बारे में आप क्या जानते हो? क्या आपने नकली बैसान देखा है जो फ़लस्तीन का आज इलाका है, यही इलाका? क्या उनके दरख्तों, खजूर के दरख्तों में फल लगते हैं, खजूर लगते हैं? हज़रत तमीम दारी कहते हैं कि मैंने उसे कहा, हाँ लगते हैं, फल लगते हैं खजूरों के दरख्तों में। तो उस दज्जाल ने कहा, हाँ अगर जब मैं निकलूँगा, जब मेरा निकलने का वक्त आएगा, उसके खजूर के दरख्त बांझ हो जाएंगे, वो खजूर देना बंद कर देंगे। उसके बाद उसने दूसरा सवाल किया। वो दूसरा सवाल ये है कि बहरी तबरिया के बारे में आप क्या जानते हैं? तबरिया जो एक दरिया है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? क्या उसका पानी खुश्क हो गया है? तमीमी दारी कहते हैं कि मैंने कहा, नहीं, उसमें पानी है, उसमें आज पानी है। तो तीसरा सवाल उसने किया कि क्या सुगर में पानी बाकी है? क्या लोग इसके पानी से अपने खेतों को सैराब करते हैं? तमीमी दारी कहते हैं कि हाँ, उसमें पानी है और लोग अपने खेतों से इससे सिंचाई करते हैं। ये बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को बता रहे हैं कि तमीमी दारी ने कहा। तमीमी दारी ने अपनी आंखों से दज्जाल को देखा, और दज्जाल और तमीमी दारी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है वो बयान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान, सहाबा के सामने बयान कर रहे हैं। तो चौथा सवाल इस दज्जाल ने तमीमी दारी से किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अरब में, उम्मियों में क्या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माबूस हुए हैं? तमीमी दारी ने कहा, जो इस वक्त नसरानी थे, उन्होंने कहा, हाँ वो माबूस हुए हैं। तो दज्जाल ने फिर सवाल किया, अब वो कहाँ हैं? क्या वो यस्रब पहुँच गए हैं? उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की, यानी यस्रब की तरफ हिजरत की। तो दज्जाल ने फिर सवाल किया, अरब के लोगों ने उसके साथ क्या सलूक किया? तमीमी दारी ने कहा, अरब के लोगों ने उनकी इताअत की, उस पर ईमान लाए और अरब पर वो छा गए। तो दज्जाल ने तारीफी कलिमात कहे, अरब के लोगों ने अच्छा किया, उसकी इताअत की, उसी में उनके लिए बेहतरी है कि उन्होंने उनकी इताअत की। तो इसलिए कहा कि जब ये चार चीज़ें जब ये पूरी हो जाएंगे, नखलिस्तान यानी जो फ़लस्तीन का इलाका है, उसमें जब खजूर के दरख्त खजूर देना बंद कर देंगे, जब बहरी तबरिया में पानी खुश्क होगा, जब सुगरा में पानी खुश्क होगा, तो मैं निकलूँगा, मेरा निकलने का वक्त आएगा। मेरा निकलने का अभी मुझे इजाज़त नहीं है, अभी मुझे निकलने की इजाज़त नहीं है। जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो मैं निकलूँगा और पूरी दुनिया पर छा जाऊँगा। कोई बस्ती ऐसी नहीं होगी जिसको मैं पाँवों तले नहीं रोंदूँगा, सिवाय 2 मकामा, सिवाय हरमैन के, सिवाय मक्का और मदीना के। बाकी मैं सब अपने पाँवों से रोंदूँगा। मक्का और मदीना मैं दाखिल नहीं हो सकूँगा, क्योंकि मदीना और मक्का के गलियों के सिरों पर
नाका लगा होगा फरिश्तों का, वो हाथों में तलवार लिए होंगे, वो हाथों में तलवार लिए होंगे, दाखिली रास्तों के सिरों पर तलवार लिए होंगे, मैं अंदर दाखिल नहीं हो सकूंगा। मदीना और मक्का की रखवाली फरिश्ते करते होंगे, लिहाजा मैं अंदर दाखिल नहीं हो सकूंगा। उसके बाद दज्जाल ने तमीमी दारी से कहूँगा कि मैं हर जगह पहुँचूंगा सिवाय मक्का और मदीना के, मैं वहाँ नहीं पहुँच सकूंगा, क्योंकि वहाँ नकबा दाखिली रास्तों पर फरिश्ते तैनात होंगे। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये गुफ्तगू सहाबा से कर रहे थे। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, क्या कहा? ये मदीना ही है, ये मदीना जहाँ दज्जाल दाखिल नहीं होगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ दज्जाल दाखिल नहीं होगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर पर असा मार कर कहा, क्या कहा? हाज़िही तैयबा, 3 दफा कहा हाज़िही तैयबा, यही तैयबा है जहाँ मैं मौजूद हूँ, यानी यहाँ दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। तो जो इससे हमें पता चलता है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखेगा, ताल्लुक़ रखेगा, मोहब्बत करेगा, उसे जुड़ेगा, तो दज्जाल उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम दज्जाल को देखो तो भाग जाओ, दज्जाल के सामने मत जाओ, दज्जाल किसी को नहीं छोड़ेगा सिवाय कुछ लोगों को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तालीमात हमें दी है कि किस तरह आप दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद फरमाया कि वो कहाँ निकलेगा, दज्जाल कहाँ निकलेगा? आपने फरमाया कि दज्जाल बहरी शाम में निकलेगा, बहरी शाम में या बहरी यमन में निकलेगा। उसके बाद उसके बाद कहा नहीं, वो मशरिक की तरफ निकलेगा, एक जजीरे मशरिक की तरफ निकलेगा। पहले कहा, राज को भी बरकरार रखा और इशारा भी दिया कहाँ निकलेगा। जो हमारे बुजुर्गान दीन शाह नियामतुल्लाह वली, बहुत सारे बुजुर्गों ने पेशन गोई कि इनमें से शाह नियामतुल्लाह वली ने पेशन की कि वो अस्फहान से निकलेगा। अस्फहान ईरान का एक शहर है। उस वक़्त अस्फहान और बलूचिस्तान एक ही इलाका था। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक हिस्सा है और अस्फहान ईरान का हिस्सा है। ये उस वक़्त एक ही इलाका था। यही से दज्जाल खरूज करेगा और 70,000 यहूदी अस्फहान से उसकी फौज में शामिल, दज्जाल की फौज में शामिल होंगे और फ़लस्तीन पहुँचेंगे। मदीना और मक्का के सिवा हर जगह तबाही मचाएगा ये दज्जाल। लिहाजा ये दज्जाल अस्फहान से निकलेगा और फ़लस्तीन तक पहुँचेगा और वहाँ हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको कत्ल करेगा। उसके जिसमें अथर से वो पिघल जाएगा और कत्ल हो जाएगा लुध के मुकाम पर। अब आइए कि अब आप देखिए, अब आप ये जानिए कि इस दज्जाल के फितने से, दज्जालियत से हम किस तरह महफूज रहेंगे, मसीह दज्जाल के फितने से किस तरह महफूज रहेंगे, कौन सा रास्ता है इसे बचने के लिए। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतला दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जो कोई जुमा के रोज़ सूरह कहफ पढ़ेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। जो सुबह शाम सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयत और आखिरी 10 आयत पढ़ेगा और याद करेगा, वो भी दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और एक दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखला दी कि आखिर तशहुद, ये जो नमाज में सलाम से पहले दुरूद शरीफ के बाद पढ़ेगा, ये दुआ सिखला दी। वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र। 4 चीज़ों से पनाह मांगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिखला दी दुआ, ए अल्लाह मुझे अज़ाब कब्र से नजात दे, वमिन अज़ाब जहन्नम के अज़ाब से नजात दे, वमिन फितनिल महया वल ममात, ज़िंदगी और मौत के फितने से महफूज रख। और फरमाए, वमिन शर्रि फितनिल मसीह दज्जाल, मुझे दज्जाल के फितने से, मसीह दज्जाल के फितने से महफूज रख। उसके बाद एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई ज़िक्रुल्लाह करेगा, ज़िक्रुल्लाह करने से भी ये दज्जाल आप पर असर हावी नहीं होगा, आप उसके फितने से महफूज रहेंगे। और आखिर क़याम को जो उस वक्त ये जिक्र करेगा, 2 जिक्र मैं बताऊंगा,
جو جو مسنون ذکر ہیں وہ بتاؤں گا، جس سے آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ ایک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو جو یہ ذکر کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک جو دجال کے خلاف ایک ہی جماعت کھڑا ہوگی، وہ مہدی علیہ السلام کی جماعت ہوگی، وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی جماعت ہوگی، ایک ہی جماعت ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوں گے، وفادار ہوں گے۔ نبی کی جماعت ہوگی، اولیاء اللہ کی جماعت ہوگی۔ جو اس میں داخل ہوگا جو اس میں شامل ہوگا وہ فتنے دجال سے محفوظ رہے گا۔ اس وقت کوئی دوسری جماعت نہیں ہوگی، کوئی شیعہ نہیں ہوگا، کوئی سنی نہیں ہوگا، کوئی دیوبندی بریلی الحدیث کوئی فرقہ نہیں ہوگا، صرف ایک جماعت ہوگی، مہدی جو اہل بیت سے ہوں گے، اہل بیت کی جماعت ہوگی، ہدایت یافتہ لوگوں کی جماعت ہوگی۔ جو اس کے ساتھ وفادار رہے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرے گا، محبت کرے گا، اسے چمٹا رہے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔